everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to continue with the same topic that we have started in the last video, that is transition and inner transition elements. This is topic number 9 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 12th, Transition and Inner Transition Elements. Topics to be covered in this chapter were these many. Out of this we are done with the few of the topics such as introduction, position in periodic table, electronic configuration, oxidation states of first transition series, physical properties of first transition series, and trends in atomic properties of first transition series. Today we are going to deal with compounds of magnesium and chromium and common properties of D block elements. So these are the two topics which we are going to deal with in today's video. And if you have missed the previous video, you can click on the I button above and see those videos. So let's begin with compounds of manganese and chromium. That is, for the compound of manganese we are going to study KMnO4, and for chromium we are going to study K2Cr2O7. So the only two compounds you are going to study in this, that is KMnO4 for magnesium and for chromium K2Cr2O7. And you need to remember that both of this compound or both of this are, that is KMnO4 or K2Cr2O7, both of them are very strong oxidizing reagents. As we have studied in last video, that D block elements or transition series elements are very good oxidizing and reducing reagents because they have good catalytic properties, and KMnO4 and K2Cr2O7 are very good and strong oxidizing reagents. Let's begin with preparation of potassium permanganate, that is KMnO4. So first type of preparation is chemical oxidation. So KMnO4 is prepared by chemical oxidation. So when a finely divided manganese dioxide, that is MnO2, is heated with strongly fused mass of caustic potash, that is KOH, and an oxidizing reagent, that is potassium chlorate, that is KClO3, then dark green potassium magnate, that is K2MnO4 is formed. So ये रिएक्शन में क्या क्या डालना है आपको डालना है फाइनली डिवाइडेड MnO2 मतलब पाउडर फॉर्म में, फिर फ्यूज्ड मास ऑफ कॉस्टिक पोटैश. अभी KOH एक्चुअली है ना, वो है ना टैबलेट्स के फॉर्म में आते हैं, तो उसको आपको फ्यूज़ करना है, हीट करके थोड़ा सा फ्यूज़ करना है. फ्यूज़ करना मतलब जब हीट करके वो मेल्ट होके जब एक दूसरे में ये हो जाता है, स्टिकी जैसा फॉर्म हो जाता है, तो उसको करेंगे फ्यूज्ड मास. तो फ्यूज मास ऑफ KOH, दैट इज कॉस्टिक पोटैश, यूज़ करना है. अलॉन्ग विथ MnO2 और KOH के साथ आपको यूज़ करना है पोटेशियम क्लोरेट, दैट इज KClO3. और ये तीनों को आप हीट करोगे तब आपको मिलेगा पोटेशियम मैग्नेट, दैट इज K2MnO4. ठीक है, तो आप ये तीनों को साथ में हीट करोगे तो क्या मिलेगा K2MnO4, दैट इज पोटेशियम मैग्नेट. अब in neutral or acidic medium, the green potassium magnate disproportionate to give KMnO4 and MnO2. ठीक है, तो एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में तो आप देख सकते हो K2MnO4 प्लस 4CO2 प्लस वाटर, ये हो गया न्यूट्रल मीडियम. ठीक है, तो न्यूट्रल मीडियम में K2MnO4 प्लस 4CO2 प्लस 2 molecules of water will give you KMnO4 plus MnO2 plus 4KHCO3. तो K2MnO4 जो ग्रीन कलर का एक सॉलिड फॉर्म हुआ था वो अब बन जाएगा KMnO4 प्लस MnO2. या फिर एसिडिक मीडियम में
K2MnO4, ये K2MnO4 ही है, सिर्फ उन्होंने क्या किया है, K2 जो 2 पॉजिटिव है उसको निकाल दिया है। तो जैसे आप K2 2 पॉजिटिव को निकाल दोगे उस पर एक साइन आ जाएगा 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये लोगों ने ये जो K2MnO4 है उसको बिना K2 के लिखा है, इसलिए हो गया MnO4 2 नेगेटिव। ठीक है, एसिडिक मीडियम में ऐसे ही लिखना पड़ता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहाँ से आया। ये एक्चुअली K2MnO4 ही है जिसमें का पोटेशियम निकाल के उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, इसलिए ये हो गया MnO4 2 नेगेटिव। जिसको आप एसिडिक मीडियम में ट्रीट करोगे तो आपको मिलेगा KMnO4, ये KMnO4 ही है जिसका अगेन उन्होंने पोटेशियम निकाल दिया है। तो इसमें एक ही पोटेशियम होता है करेक्ट KMnO4 में, तो एक पोटेशियम बाहर निकालने पे यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे 2 पोटेशियम था K2MnO4 में, इसलिए 2 पोटेशियम निकालने के बाद 2 नेगेटिव चार्ज था, बट KMnO4 फॉर्म कर रहा है जिसमें एक पोटेशियम माइनस करके एक ही नेगेटिव चार्ज है। तो ये कोई अजीब कंपाउंड नहीं है, ये KMnO4 ही है जिसमें पोटेशियम मिसिंग है। तो इट विल फॉर्म 2MnO4 नेगेटिव प्लस MnO2 प्लस वाटर. So, if you treat K2MnO4 either in neutral medium like CO2 plus water or in acidic medium, you will end up with KMnO4. अब ये भी जो भी KMnO4 यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में होता है जिसमें बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स है। सो दिस लिक्विड इज नाउ फिल्टर्ड विद ग्लास ऊल और सिंट्रेटेड ग्लास। तो एक्चुअली ग्लास ऊल एक्चुअली ना ऊल की तरह ही होता है पर वो ग्लास का बना रहता है महीन सा, मतलब वो लैब में आपको देखने को मिल जाएगा। और उसको एक्चुअली फनल पे रख के ये लिक्विड को फिल्टर किया जाता है और इसको फिल्टर करने के बाद इसको इवापोरेट किया जाता है। इवापोरेट तब तक करना है जब तक आपको कोई क्रिस्टल नीचे दिखने ना लगे, तो अंटिल क्रिस्टलाइजेशन डज नॉट अकर। और वो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो होते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, दैट इज KMnO4, और वो दिखते हैं ऑलमोस्ट ब्लैक कलर के। तो आप KMnO4 कभी भी आप दुकान में जाके या फिर फर्टिलाइज़र वाले दुकान में जाके आप देखोगे या लैब में KMnO4 के क्रिस्टल्स देखोगे वो तो ऑलमोस्ट ब्लैक कलर के दिखते हैं। ठीक है, और वो फॉर्म होते हैं, किससे फॉर्म किए जाते हैं केमिकल ऑक्सीडेशन से, MnO2 को। तो MnO2 को ऑक्सीडाइज किया जाता है और फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है K2MnO4 में, और K2MnO4 को एसिड या न्यूट्रल मीडियम में ट्रीट करोगे तो मिल जाएगा KMnO4. Second method है electrolytic oxidation. So in electrolytic oxidation, alkaline solution of magnet ion, that is K2MnO4. तो K2MnO4 तो आपको यही फर्स्ट वाले रिएक्शन से ही यहाँ पे भी बनाना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने बनाया MnO2 प्लस 6KOH प्लस KClO3 विल गिव यू 3K2MnO4। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही बनेगा। ठीक है, फिर उसको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करना है इन अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ मैग्नेट आयन इज इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन द आयन इलेक्ट्रोड सेपरेटेड बाय अ डाइफ्रेम। तो वहाँ पे 2 आयन इलेक्ट्रोड लिया जाता है एक्चुअली, और 2 आयन इलेक्ट्रोड के बीच में MnO2 और अल्कलाइन सोल्यूशन लिया जाता है, दैट इज KOH और NaOH। ठीक है, कुछ भी डालो तो उधर ऑक्सीडेशन होगा और क्या फॉर्म होगा, K2MnO4। बट K2MnO4 जो भी फॉर्म होगा वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा जो ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है एनोड पे उससे। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, पहले हम लोग क्या लेने वाले हैं, MnO2 प्लस KOH और NaOH जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके बनाने वाले हैं K2MnO4, और ऑक्सीजन लिबरेट होने वाला है एनोड पे। अब ये लिबरेटेड ऑक्सीजन जो भी है एनोड पे वो फर्दर रिएक्ट करेगा K2MnO4 के साथ और उसे कन्वर्ट कर देगा KMnO4 में। तो बेसिकली आपने स्टार्टिंग कैसे किया, MnO2 से ही। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, द ऑक्सीजन इन्वॉल्व एट द एनोड कन्वर्ट्स द मैग्नेट दैट इज MnO2 is first converted to K2MnO4, that is magnet, and that magnet is now converted to permagnet. वापस आपको यहाँ पे KMnO4 एक सोल्यूशन और एक लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ये जो KMnO4 है एक सोल्यूशन या एक लिक्विड के फॉर्म में ही मिलता है, उसको वापस आपको फिल्टर करना है, इवापोरेट करना है। तब तक इवापोरेट करना है जब तक आपको क्रिस्टल नहीं दिखते, और वो क्रिस्टल जो भी दिखेंगे होंगे डीप पर्पल ब्लैक कलर के, तो होंगे KMnO4 के क्रिस्टल। तो ये 2 मेथड है जिससे आप KMnO4 बना सकते हो। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। KMnO4 कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाता है,
फर्स्ट इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में KMnO4 कौन सा प्रॉपर्टी दिखाता है, तो वो है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडीन। तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करता है। तो ये है आपका KMnO4। मैंने आपको बताया एसिडिक मीडियम में KMnO4 MnO4 माइनस के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये KMnO4 ही है, जस्ट पोटेशियम को रिप्लेस कर दिया है उन्होंने नेगेटिव चार्ज से, क्योंकि पोटेशियम पे पॉजिटिव होता है, यदि आप एक पॉजिटिव आयन को निकाल दोगे तो मॉलिक्यूल पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो वही यहाँ पे हुआ है। तो ये है MnO4 नेगेटिव, दैट इज द KMnO4 इटसेल्फ, प्लस 10 I नेगेटिव दैट इज आयोडीन, प्लस 16H प्लस। तो एसिडिक मीडियम है इसलिए आपको H प्लस तो लेना ही है। तो KMnO4 आपका रिड्यूस हो गया Mn2 प्लस में, प्लस वाटर प्लस आयोडीन। तो आपका देखो आयोडाइड बन गया है यहाँ पे आयोडीन। और आपका ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन सा है, KMnO4, जो रिड्यूस होके बन गया MnO2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यदि आप कैलकुलेट करोगे KMnO4 में तो है +7, और वो रिड्यूस होके हो गया +2। तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स ऑक्सीडाइजेस अदर बट रिड्यूसेस इटसेल्फ, यहाँ पे प्रूफ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस, दैट इज फेरस को कन्वर्ट करता है फेरिक में। Fe2 प्लस होता है फेरस, Fe3 प्लस होता है फेरिक। तो KMnO4 फेरस को कन्वर्ट कर देता है फेरिक में। तो आप देख सकते हो MnO4 नेगेटिव दैट इज KMnO4 इटसेल्फ प्लस 5Fe2 प्लस इन एसिडिक मीडियम कन्वर्ट्स इट टू 5Fe3 प्लस दैट इज फेरिक। Mn अभी रिड्यूस होके हो गया Mn2 प्लस प्लस वाटर। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ H2S। तो H2S गिव्स यू 2H प्लस प्लस S2 माइनस, ठीक है। H2S को आप डिसोसिएट करोगे तो आपको मिलेगा 2H प्लस प्लस S2 माइनस। अब ये 5S2 माइनस प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4 दैट इज 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H प्लस, क्योंकि एसिडिक मीडियम है इसलिए 16H प्लस विल गिव यू 2Mn2 प्लस प्लस 5 सल्फर प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल। तो बेसिकली यहाँ पे आपका S2 माइनस ऑक्सीडाइज हो गया है, क्योंकि 2 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट था, अब वो न्यूट्रल हो गया है, तो वो क्या हो गया ऑक्सीडाइज। माइनस से न्यूट्रल होना मतलब ऑक्सीडेशन होना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए, करेक्ट। और KMnO4 दैट इज MnO4 नेगेटिव अगेन रिड्यूस टू Mn2 plus and gives water. The next is the oxidation of oxalic acid. So KMnO4 that is 2MnO4 negative plus oxalic acid that is 5H2C2O4. oxalic acid मतलब क्या होता है H2C2O4. तो 5H2C2O4 in the presence of acid gets converted to 10CO2 plus water and again your Mn is reduced to Mn2 plus. तो ये सारे रिएक्शन में आप देखोगे आपके KMnO4 that is MnO4 negative is reduced to Mn2 plus and iodide is oxidized to iodine, ferrous is oxidized to ferric, S2 minus is oxidized to S, and your oxalic acid is oxidized to carbon dioxide. Next, the action of KMnO4 in neutral or weakly alkaline medium. न्यूट्रल या फिर वीक बेसिक मीडियम में यदि KMnO4 लोगे तो ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड दैट इज I माइनस टू आयोडेट, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना है। एसिडिक मीडियम में आयोडाइड कन्वर्ट होता है आयोडीन में, वीकली अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में आयोडाइड कन्वर्ट होता है आयोडेट में। ये डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। अब KMnO4 that is MnO4 minus plus water plus I minus that is iodine is converted to 2MnO2 plus 2OH minus plus iodide that is IO3 minus. So again your iodine I minus is oxidized to IO3 minus that is iodate. तो KMnO4 को जब भी आप न्यूट्रल मीडियम में लोगे तो आपका आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा आयोडेट में, और आप यदि उसको एसिडिक मीडियम में लोगे तो आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा आयोडीन में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज थायोसल्फेट। सो थायोसल्फेट दैट इज S2O3 2 minus is oxidized to sulfate that is SO4 2 minus. So again KMnO4 in the form of 8MnO4 negative
plus 3s2o3 2 minus, that is thiosulfate, plus water give you reduced form of MnO2, plus now thiosulfate is oxidized to sulfate, that is SO4 2 minus plus 2OH minus. Next है magnesious salt is oxidized to MnO2. So MnO4 minus, that is your KMnO4, plus 3Mn2 plus water gives you MnO2 plus 4H plus, that is your magnesious salt, that is Mn2 plus is oxidized to MnO2. यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन क्या हुआ +4, तो ठीक है Mn2 प्लस क्या हो गया Mn4 plus, that is magnesious salt is now oxidized to MnO2 with the help of KMnO4 in neutral medium. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ KMnO4. KMnO4 को प्रिपरेशन और ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ा हमने, क्योंकि उसके कुछ यूजेस है. क्या यूजेस है? पहला, इट इज़ एन गुड एंटीसेप्टिक. KMnO4 एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर फाइंडिंग आउट अनसैचुरेशन टेस्ट इन लैबोरेटरी. तो सपोज आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई टेस्ट कर रहे हो और आपको पता लगाना है कि उस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड या साइट ऑफ अनसैचुरेशन है कि नहीं. डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना मतलब साइट ऑफ अनसैचुरेशन, करेक्ट. और वो टेस्ट आपको पता लगाना है तो KMnO4 यूज़ होता है. तो KMnO4 का सोल्यूशन जो है डाइल्यूट सोल्यूशन लिया जाता है जो पिंक कलर का होता है. ठीक है, KMnO4 का जब आप डाइल्यूट सोल्यूशन बनाओगे, जब बहुत कम अमाउंट में KMnO4 और ज़्यादा पानी, तब आप देखोगे पिंक कलर का सोल्यूशन रहेगा. और उस सोल्यूशन में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड डालोगे और उस सोल्यूशन का कलर अनचेंज रह गया, मतलब आपका कंपाउंड सैचुरेटेड है. सैचुरेटेड है मतलब उसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं था. बट सपोज ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते ही आपका पिंक कलर डीकलराइज हो गया, मतलब कलर चेंज हो गया या कलर गायब हो गया, तो आपका गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में साइट ऑफ अनसैचुरेशन था, मतलब उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड था. तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड फाइंड आउट करने के लिए लैब में KMnO4 का डाइल्यूट सोल्यूशन यूज़ होता है. उसको कहते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट. ठीक है, दूसरा होता है इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का वॉल्यूमेट्री एनालिसिस करने के लिए भी KMnO4 यूज़ होता है. फॉर डिटेक्टिंग हाइलाइट्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस. एंड नेक्स्ट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्री. तो ये वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है KMnO4 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट. Next is K2Cr2O7, that is preparation of potassium dichromate. So in industrial production, finely powdered chromate ore, that is FeOCr2O3, is heated with anhydrous sodium carbonate, that is Na2CO3, and a flux of lime in air in रेवरेटरी फर्नेस. तो रेवरेटरी फर्नेस में क्या लिया जाता है? क्रोमेट ओर जो है FeOCr2O3, और उसको ट्रीट किया जाता है सोडियम कार्बोनेट से, दैट इज N2CO3, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, और उसको हीट किया जाता है. हीट करते ही वो बनता है Na2CrO4. ठीक है, तो आपका FeOCr2O3 प्लस Na2CO3 प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म Na2CrO4 प्लस Fe2O3 प्लस CO2. अब ये सोडियम क्रोमेट Na2CrO4, that is called as sodium chromate, is formed in this reaction, is extracted. उसको extract किया जाता है with water, and then it is further treated with sulfuric acid to give sodium dichromate एंड हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट. ठीक है, तो जो भी आपका सोडियम क्रोमेट फॉर्म हो रहा है फर्स्ट रिएक्शन में, आपका क्रोमेट ओर को रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो बन रहा है सोडियम क्रोमेट. ये सोडियम क्रोमेट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ट्रीट किया जाता है H2SO4 के साथ, और ट्रीट करते ही वो देता है सोडियम डाइक्रोमेट, दैट इज Na2Cr2O7 प्लस सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl, प्लस योर हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट. ठीक है, अब नेक्स्ट एडिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट precipitates less soluble orange red colored potassium dichromate K2Cr2O7.
तो जो भी आपको सोडियम क्रोमेट मिलेगा उसमें आपको डालना है KCl का सॉल्ट, और वो डालते ही आपका सोडियम क्रोमेट किस में प्रेसिपिटेट होता है, K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम क्रोमेट में। ठीक है, और ये होता है ऑरेंज रेड कलर का। तो एक्चुअली K2Cr2O7 जो है वो लेस सॉल्युबल होता है आपके सोल्यूशन में, और इसलिए इजीली प्रेसिपिटेट हो जाता है, और ऑरेंज रेड कलर का आपको नीचे प्रेसिपिटेट दिखेगा प्लस NaCl। तो जब भी आपको बनाना है K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पहले आपको बनाना होगा सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा आपका क्रोमेट ओर से। सो क्रोमाइट ओर से आपको बनाना है सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट को आपको KCl के साथ ट्रीट करके बनाना है पोटेशियम डाइक्रोमेट। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ I- दैट इज योर आयोडाइड from aqueous solution of Ki by acidified K2Cr2O7 gives iodine। सेम थिंग, जैसे KMnO4 आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिडिक मीडियम में दे रहा था आयोडीन, यहाँ पे भी K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिडिक मीडियम में दे रहा है आयोडीन। एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज रिड्यूस टू क्रोमिक सल्फेट। इस केस में पोटेशियम डाइक्रोमेट किस में रिड्यूस होता है, क्रोमिक सल्फेट में, और I2 रिलीज होता है, उसकी वजह से आपका सोल्यूशन हो जाता है ब्राउन कलर का, क्योंकि आयोडीन होता है ब्राउन कलर का। तो आप देख सकते हो ये है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट जो Ki दैट इज आयोडीन आयोडाइड के साथ ट्रीट करके इन एसिडिक मीडियम दैट इज H2SO4 में दे रहा है आपको पोटेशियम, ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट देगा, ओके, दैट इज द पोटेशियम क्रोमिक सल्फेट देगा। एक्चुअली ये K2 क्रोमिक सल्फेट दैट इज Cr2O4 SO4 ओके, प्लस आयोडीन। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज नाउ कन्वर्टेड टू क्रोमिक सल्फेट प्लस आयोडीन। नेक्स्ट इज व्हेन H2S gas is treated with acidified K2Cr2O7 solution, H2S gas is oxidized to pale yellow precipitate of sulfur, and simultaneously potassium dichromate is again reduced to chromic sulfate that is Cr2SO4 ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है K2Cr2O7 जब भी ऑक्सीडेशन करेगा खुद को रिड्यूस किस में करेगा, क्रोमिक सल्फेट में, दैट इज Cr2SO4 थ्राइस। ठीक है, और ये कब रिफ्लेक्ट होगा, जब आपको ऑरेंज कलर का पोटेशियम क्रोमेट चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में, क्योंकि क्रोमिक सल्फेट का कलर होता है ग्रीन। तो जब भी ऑरेंज कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे रिएक्शन एंड हो गया है। तो क्रोमियम that is the potassium dichromate when treated in acidic medium to H2S gas, so it converts it to sulfur and reduces itself, वो खुद को reduce किस में कर लेता है, क्रोमिक सल्फेट में, और आपको ऑरेंज कलर ऑफ द क्रोमियम पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर चेंज हो जाता है ग्रीन कलर ऑफ क्रोमिक सल्फेट में। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कौन से कॉमन प्रॉपर्टीज है, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी। आपको याद रखना है बेसिकली कि डी ब्लॉक एलिमेंट सारे के सारे होते हैं मेटल्स, और इसलिए वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स के प्रॉपर्टी को ज़्यादा दिखाते हैं। सो as the D block elements are transition metals, so they show more and more metallic properties such as all D block elements are lustrous and shining, क्योंकि सारे metals क्या होते हैं, lustrous होते हैं, और उनमें एक shine होता है, इसलिए D block elements भी lustrous होते हैं और वो shining होते हैं। They are hard and have high density because again this is a metallic property, इसलिए D block elements या transition metals hard होते हैं and have high density, as they have high melting point and boiling point similar to that of metals। ठीक है, उनको high boiling point और melting point होता है। They are metals, therefore they are good conductor of electricity and thermal conductors। तो यहाँ पे physical property में आपको सारे के सारे metal वाले ही property लिखना है। They have high tensile strength and malleability। ठीक है, उनमें high tensile strength भी होता है और malleability भी होता है। They can form alloy with transition and non-transition
एलिमेंट्स, तो ये तो हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें वेरी गुड एलॉय फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज़ होता है। और एलॉय सिर्फ दूसरे ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ नहीं बल्कि दूसरे एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ भी एलॉयज बना पाते हैं। ठीक है, मेनी मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक। ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स में ज़्यादा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। येस, यू आर करेक्ट। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखती है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर इफिशियंट कैटलिस्ट। तो ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरी गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी एंड दे आर एफिशिएंट कैटलिस्ट। तो पहले आपको सारे मेटल वाले प्रॉपर्टीज लिखना है फिजिकल प्रॉपर्टी में और फिर बताना है कि वो लोग एलॉय फॉर्म कर सकते हैं, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड दे आर एफिशिएंट कैटलिस्ट। Next we go to chemical properties. So all D block elements are electropositive metals. तो सारे D block elements transition metals होते हैं और metals हमेशा electropositive होते हैं. So all D block elements are electropositive metals and they show variable valencies. वो बहुत सारे valencies exhibit कर पाते हैं, इसलिए वो coordination compound form कर पाते हैं. क्योंकि आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेम जो सेंट्रल मेटल है वो कभी 4 लिगैंड के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है और कभी 6 लिगैंड के साथ. क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल वैलेंसी दिखा पाता है. सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल वैलेंसीज एंड दे फॉर्म कलर्ड सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्सेस. क्योंकि वहाँ पे डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल है इसलिए वो कलर्ड सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं. They are good reducing agents and oxidizing reagents too. ठीक है, वहाँ पे मेंशन नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में पर आपने मेंशन करना है. They are good oxidizing and reducing reagents. They form insoluble oxides and hydroxides. D block elements बहुत insoluble oxides and hydroxide form कर पाते हैं. Iron, cobalt, copper, molybdenum, zinc are biologically important metals. ये बायोलॉजिकल साइकिल में लिविंग साइकिल में ये मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जैसे आपके हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है? आयरन. ठीक है, आपके बहुत सारे जो माइनर मेटल्स जो आपको लग रहे हैं कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं जैसे विटामिन B12 उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट है? कोबाल्ट. ठीक है, कॉपर भी एक वन ऑफ द रिएजेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है. ठीक है, मोलिब्डेनम एंड जिंक भी आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है और ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल में क्योंकि इनके बिना वो हीमोग्लोबिन या विटामिन B12 ये सब इम्पॉसिबल है और आपका लाइफ साइकिल इम्पॉसिबल है. सो दिस मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल साइकिल ऑल्सो एंड दे इवन कैटलाइज बायोलॉजिकल रिएक्शंस. जिंक और जो कॉपर है ये सब बहुत सारे कैटलिस्ट में प्रेजेंट होते हैं जो बायोलॉजिकल साइकिल में कैटलिस्ट का रिएक्शन का यूज़ करते हैं. मतलब बायोलॉजिकल साइकिल में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिसमें कैटलिस्ट चाहिए होते हैं और वो जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है उनमें ये वाले मेटल्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज डिफरेंसेस. सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में तो हमने देख लिया उनके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सारे के सेम होते हैं बट कभी कभी उनमें डिफरेंसेस दिखते हैं. वो कौन सा है? Although most properties exhibited by D block elements are similar, the elements of first row differ from the second and third row in stabilization of higher oxidation state in their compounds. इसका मतलब ये है जो फर्स्ट रो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो स्कैंडियम से लेके जिंक तक वो फर्स्ट रो वाले हैं उनमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इतना स्टेबल नहीं होता जितना सेकेंड एंड थर्ड रो ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट में होता है. ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट में बेसिकली 4 रोज होते हैं. जो पहला वाला है जो फर्स्ट रो एलिमेंट्स है स्कैंडियम से लेके जिंक तक उनमें जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उतने स्टेबल नहीं है जितने सेकेंड एंड थर्ड में. फॉर एग्जाम्पल molybdenum and tungsten. Molybdenum oxidation state 5 and tungsten oxidation number state 6. ठीक है, तो molybdenum oxidation state 5 and tungsten oxidation number 6 are more stable than chromium 6 and manganese 7. तो chromium 6 और manganese 7 ये दोनों भी कहाँ के हैं? फर्स्ट रो डी ब्लॉक एलिमेंट के. ठीक है, फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के.
वो इतने स्टेबल नहीं है, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑफकोर्स ज़्यादा है, क्रोमियम विथ 6 एंड मैग्नीज विथ 7, बट वो इतने स्टेबल नहीं है जितना सेकेंड रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज है जो है मोलिब्डेनम 5 एंड टंगस्टन 6। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट तो फर्स्ट रो वाले एलिमेंट से कम है, पर वो ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो इज +7, वो मैग्नीज है। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट रो में कौन सा दिखता है, +7 जो मैग्नीज है, बट थर्ड वाले रो में +8 सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है जो दिखता है RuO4 एंड OSO4 में। ठीक है, RuO4 एंड OSO4 दैट इज Ru एंड OS जो थर्ड रो एलिमेंट है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 दिखाते हैं, बट फर्स्ट रो एलिमेंट सिर्फ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इसका मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑल प्रॉपर्टी सेम होता है एक्सेप्ट फॉर देयर वैलेंसीज एंड ऑक्सीडेशन state. And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any suggestion, any comment, you are free to do that on asiadoubt04@gmail.com. If you have liked my video, please give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And before departing, hardship often prepares an ordinary person for an extraordinary destiny. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.